अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 के ईवीएससी का चैप्टर शेयरिंग आवर फीलिंग्स यानी अपने एहसासात को बांटना। तो पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 शेयरिंग आवर फीलिंग्स। After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often has back pains. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. She does the rest of her work herself. If someone tries to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. स्कूल से वापस आने के बाद दो लोग हैं जिनके साथ मैं स्कूल की बातें शेयर करता हूँ और उनको मेरी बातें सुनना भी बहुत पसंद है। जो पहला पर्सन है वो है मेरी नानी। वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहती है मेरी बातें सुनने के लिए और वो वेट करती है कब मैं स्कूल से आऊँ और वो मेरी बातें आराम से सुनेगी। वो काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, बूढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा कमर दर्द भी रहता है। वो ढंग से देख नहीं सकती हैं, ढंग से सुन नहीं सकती हैं और सुबह सवेरे पापा न्यूज़पेपर ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ताकि दादी अच्छे से सुन पाए और बाकी सारे काम वो खुद ही कर लेती हैं। अगर कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो नाराज़ हो जाती हैं। वो अच्छे से देख नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी उनको सब्जियां काटना अच्छा लगता है और वो कहती हैं आजकल के बच्चों को सब्जी काटना नहीं आता है। The second person is my Ravi Bhaiya. He lives with us. I call him Ravi Bhaiya and he calls my parents Bhaiya Bobby. I do not know what our relationship is, but he is a very loving brother. He is always ready to answer my questions. He never says, I will tell you later. Ravi Bhaiya teaches in a college. The students of the college respect him a lot. A few of them come home to study from him. Ravi Bhaiya is very fond of listening to music and taking part in plays. He enjoys chatting with his friends and going out with them. He has a good sense of humor and makes all of laugh. Ravi Bhaiya carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. जो सेकंड पर्सन है जिनको मैं अपनी बातें सुनाती हूँ वो है रवि भैया। वो हमारे साथ ही रहते हैं। मैं उसको रवि भैया बोलती हूँ और वो मेरे पापा मम्मा को भैया भाभी बुलाता है। मुझे ये पता नहीं है कि वो हमारा क्या लगता है, मगर वो बहुत अच्छा है। वो हमेशा तैयार होता है मेरे सवालों का जवाब देने के लिए और कभी मुझे ये नहीं कहता है कि बाद में बोलना। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं और कॉलेज के बच्चे इसकी बहुत इज्जत करते हैं। रवि भैया को गाना सुनना और नाटक में हिस्सा लेना बड़ा पसंद है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ बातें करना और घूमना बहुत पसंद है। उससे हंसी मजाक करना बहुत पसंद है। भैया अपने साथ हमेशा एक सफ़ेद लाठी रखता है। जिस तरह वो घर में इधर उधर घूमता है, कोई भी नहीं कह सकता है कि वो देख नहीं सकते हैं। भैया को अपना काम खुद करना पसंद है। जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती है वो हमें बोलते हैं। Some of Bhaya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listens to these tapes. Bhaiya has many other books too.
The pages of these books are thick and have rows of raised points, dots. He reads by running his fingers on the raised dots. To have fun with Baya, I sometimes change the place of his sitting. He does not. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister, Seema. I had hardly reached the door that Baya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. Baya recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move, whether I am happy or sad. Baya, finally I am in the football team. I share my news with him. He patted me and said lovingly, "From today you are my football coach." बया के कुछ स्टूडेंट्स किताबों को टैप में रिकॉर्ड करते हैं और बया इन टैप्स को सुनता है। बया के पास बहुत सी किताबें हैं जिनके वर्क मोटे मोटे हैं और इन पे एक रो में कुछ बाहर की तरफ डॉट्स हैं। इन्हीं डॉट्स पे उंगलियां रख के वो पढ़ता है। मैं कभी कभार मजे के लिए बया की लाठी छुपा देती हूँ। वो मायूस होते हैं, फिर इन्हें कभी गुस्सा नहीं करते। आखिरकार मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ, सीमा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये राइटर एक लड़की है जिसका नाम सीमा है। तो वो आगे बोलती हैं कि बया हमारे चलने की आवाज़ से ही मुझे और मेरे घर वालों को पहचान लेता है कि हम खुश हैं या उदास। तो सीमा रवि बया से कहती है कि मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गई हूँ और आज से आप मेरे कोच हो। Let us learn about Braille. You have seen that Ravi Baya reads special types of books. How were these books made? Who first thought of these books? Let us find out about it. Louis Braille belonged to France. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later came to be known as the Braille script. In this type of a script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written using the computer. अब हम पढ़ेंगे ब्रेल के बारे में। हमने देखा कि रवि बया कुछ खास किस्म की किताबें पढ़ता था। ये किताबें कैसे बनी, किसने इन किताबों को बनाने के बारे में सोचा, ये देखते हैं। तो बच्चों, लुइस ब्रेल एक साइंटिस्ट था जो फ्रांस का रहने वाला था। जब वो 3 साल का था तो वो अपने पापा की चीज़ों के साथ खेल रहा था, तो उनकी आंखों में एक नोकीली दार औजार चला गया और वो अंधा हो गया। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसने हार नहीं मानी। वो डिफरेंट तरीकों से लिखने और पढ़ने का सोचने लगा। आखिरकार उसने चीज़ों को छूने और महसूस करने के जरिए पढ़ने का तरीका खोजा। पढ़ने के इस तरीके को ब्रेल स्क्रिप्ट कहा गया। इस स्क्रिप्ट में एक रो में कुछ बाहर की तरफ कुछ निकाले हुए बटन होते हैं जो मोटे पेपर से बनाए जाते हैं। क्योंकि ये डॉट्स बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो इस पे जब उंगलियां घुमाते हैं तो अंधे लोग पढ़ पाते हैं। तो बच्चों, ये स्क्रिप्ट 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है। इस स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चेंजेस आई है जिसकी वजह से पढ़ना और लिखना इजी हो गया है
और इस स्क्रिप्ट को कंप्यूटर पे भी लिखा जाता है। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज़।